آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 3 دن پہلے فاضل پور میں دانش اسکول میں 300 سے زائد طلبہ نے انڈس ہائی وے روڈ بلاک کر دیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ پرنسپل کا ناروا سلوک کی وجہ سے جس پر جو دانش اسکول کی جو انتظامیہ ہے وہ بچوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، داڑھی رکھنے سے منع کیا جاتا ہے اور بنیادی جو سہولتیں ہیں اس کا فقدان ہے دانش اسکول میں۔ میرے ساتھ اس ٹائم ہمارے سینئر تجزیہ نگار جواد ابراہیم موجود ہیں اور کسفر بزار ڈسٹرکٹ راجن پور سے راجن پور کی ادبی شخصیت ہیں، وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بزار سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزار صاحب، یہ 3-4 دن سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے پیچھے سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا، اس کے اوپر ایک FIR بھی درج ہوئی آپ کے اوپر اور الحمدللہ دوستوں نے آپ کے حلقہ باب کے بڑا اس کا سیلیبریٹ کیا جب یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے پیچھے کیا ساری صورتحال تھی، تھوڑا آگاہ کیجیے گا ناظرین کو۔ سر، دانش سکول میں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ باتیں جو ہیں اندرونی حالات کی وہ باہر آ رہی تھی، ہمارے پاس بھی آ رہی تھی، پورے علاقے میں بھی اس کے بارے میں کوئی تشویش تھی جی۔ یہ اچانک ایک حادثہ ہوا، اچانک، اور کوئی بڑا حادثہ اچانک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے واقعات اور حادثات کا تسلسل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ٹین ایجر بچے جن کی عمر 12 سال 14 سال 15 سال ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں یک آواز کیسے ہوئے اور باغی کیسے ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا کہ دانش سکول کی سیکیورٹی، سخت ترین سیکیورٹی قلعہ نما سکول ہے، وہ جو ہے نا وہ توڑ کر وہ باہر آ گئے۔ یعنی وہ اتنا فرسٹریٹڈ تھے، اتنا دباؤ کا شکار تھے کہ انہوں نے وہ بغاوت پر اتر آئے۔ ہم سیاسی سماجی کارکن ہیں، فاضل پور میں موجود تھا، وہاں پہ اتفاقاً میں نے دیکھا کہ بہت بڑا جلوس آ رہا ہے، بچوں کا وردی میں بھی تھے اور وہ بہت چلا بھی رہے تھے، چیخ بھی رہے تھے اور غیر منظم تھے کیونکہ بچے تھے، اور انہوں نے آگے چوک پر دھرنا دے دیا۔ ہمارے اپنے قصبے کے بھی کچھ بچے اس میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ پرنسپل کے خلاف ہم دھرنا دے رہے ہیں اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پرنسپل کو برطرف کیا جائے۔ اور جب میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کی اور ہم نے ان کا ساتھ دیا، تو اسی دوران پولیس بھی آ گئی، AC صاحب بھی آ گئے اور پھر امن کمیٹی بھی آ گئی، مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن بچے کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ یعنی چیخیں مار کے، منہ پھاڑ کے باتیں کر رہے تھے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ داڑھی کا مسئلہ تھا یا نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، یہ بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن مسائل اور بہت زیادہ تھے جو بچوں نے بتائے، اور انہوں نے اس کے یعنی پرنسپل کی بربریت کے بارے میں بتایا۔ رات کو 3 بجے ہماری رضائیاں اٹھا کے ہمیں اٹھایا جاتا ہے، اتنی تلاشیاں لی جاتی ہیں حتیٰ کہ ہمیں برہنہ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی، بہت زیادہ اتنی باتیں کی کہ جو پبلکلی میں یعنی بیان نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے بیان کی پرنسپل کے بارے میں کہ وہ اس کا رویہ کیا ہے۔ تو حکام بادشاہ ہیں، انہوں نے الٹا FIR میں پرنسپل کو مدعی بنا دیا، یعنی بچوں سے انکوائری ہوگی، اس سے انکوائری نہیں ہوگی۔ اصل میں تو انکوائری پرنسپل کی ہونی چاہیے۔ بھیا تم نے کیسا رویہ دیا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے بغاوت پہ اتر آئے اور وہ ذہنی مریض ہونے لگے۔ سر یہ پرنسپل جو ہے یہ رات کو 3 بجے بچوں کو نکال بھی دیتا ہے، یعنی اسکول سے باہر روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں بھی سامنے آئیں۔ بزار صاحب یہ فرمائیے گا، اب تو CM بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے بزار ہیں ڈیرہ غازی خان سے، اور نئے پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہے، عام آدمی کی بات کی جا رہی ہے، اس میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً بڑی تکلیف دہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اسکول
के कम उम्र स्टूडेंट जो उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक किया जाता है और वो स्कूल से निकल कर बाहर हाईवे पर आकर रोड ब्लॉक कर देते हैं और इंतज़ामिया को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है। और फिर आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अगर बीच में आकर मामले को किसी तरफ बिठाने की कोशिश करें तो उन पर FIR दर्ज की जाती। क्या कहेंगे, ये नए पाकिस्तान का, ये तो नहीं बताया गया था नया पाकिस्तान इस तरह का होगा। सर, नया पाकिस्तान जिस तरह एक्सपोज हुआ है वो आप भी बखूबी जानते हैं, तजिया निगार साहिबान भी बखूबी जानते हैं, और हम तो उसके जद में हैं। हमें तो पूरा पता है नया पाकिस्तान क्या है, आपको भी पता है बड़ा। और पाकिस्तान की जो हुक्मरान क्लास है मुर्शद, ये नजरियाती तौर पे बहुत पसमानदा है, ये तारीख में लेट दाखिल हुए, बहुत पसमानदा है। इनसे आप कोई सियासी फैसले की या कोई नजरियाती फैसले की तवक्को मेरे ख्याल में दीवाने का ख्वाब है, पागलपन होगा हमारा अगर इनसे तवक्को रखें, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ सरमाए और ताकत के लिए सियासत करते हैं, सियासत का आसरा लेते हैं सरमाए और ताकत के हसूल के लिए। लेकिन इनका मसला भी नहीं बनता लोगों के मसाइल हल करना, इनका मसला भी नहीं बनता अवाम और नास के मसाइल हल करना, तो इनसे तवक्को तो मेरे ख्याल में पागलपन ही है। गुलजार साहब, ये आपकी बात को तो CM ने नफी कर दिया। पिछले 4-5 दिन पहले उनका हंगामी दौरा था डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का, जहां पर उन्होंने 15 अरब रुपए के करीब का पैकेज दिया है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, जिसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो ये यकीनन थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है, या आपको क्या लगता है ये या सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च है? ये मुर्शद, ये जो ऐलान होते हैं ये पता नहीं इनकी असल हकीकत क्या होती है। 15 अरब पता नहीं कहां से आए, पता नहीं कहां लगे, पता नहीं किधर गए। मैं एक आम आदमी हूं, सियासी कारकुन हूं। आम आदमी का इस ग्रांट से या इन पैसों से या इन मंसूबों से मेरे ख्याल में कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सरमायादाराना जमहूरियत जो है ना, ये सिर्फ सरमायादार के लिए या हुक्मरानों के लिए जो है ना, ये जन्नत से कम नहीं है, और गरीब के लिए ये दोज़ख से भी ज्यादा तल्ख है। 15 अरब हमें तो दिख भी नहीं रहे कि किधर लगा है, कहाँ है। नहीं, ऐलान तो होते रहते हैं। 15 अरब का कसर गुलजार साहब उन्होंने ऐलान किया है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हमारे साथ गुलजार साहब हमारे सीनियर तजिया निगार भी मौजूद हैं, जवाद इब्राहिम। जवाद, अस्सलाम वालेकुम। जवाद, ये तो एक तो पिछले 4-5 दिन पहले जो CM का विजिट हुआ था जिसपे कोई 15 अरब के करीब तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, जिसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल थी और छोटे बड़े अस्पताल, छोटे जो आपके जो वहाँ पर स्कूल्स हैं उस हवाले से मेरे ख्याल 12 गालबंद स्कूल थे, कोई 11-12 के करीब जो है छोटे अस्पताल जो है उसको अपग्रेड, फाजलपुर, मोहम्मदपुर। तो ये अब ये वाकया जो हुआ 3 दिन पहले ये दानिश स्कूल का, तो ये किस तरह से देखते हैं ये नया पाकिस्तान, और जहां पर इतने कम उम्र बच्चे स्कूल से निकलते हैं और वो इंतजामिया के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद करते हुए रोड ब्लॉक करते हैं, जिसमें गुजरने वालों के मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, इंतजामिया बीच में इन्वॉल्व होती है। और दूसरी तरफ अगर कोई वहां का शरीफ आदमी, अदबी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अगर बीच में आकर बात करने की कोशिश करता है तो प्रिंसिपल जो है उसकी मुद्दत में ही उस पर FIR दर्ज करवा दी जाती है। किस तरह से देख रहे हैं इस सारे वाक़े को? जी, जैसा कि कसर गुलजार साहब भी बता रहे थे कि वक्त की कोख में पल रहा है बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो परसों चौथ वाकया हुआ है दानिश स्कूल के सामने, जिस तरीके से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, जिस तरीके से वो गेट तोड़ के बाहर रोड पे आए हैं और उन्होंने धरना दिया है, तो ये कोई ऐसी आम बात नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ मैच्योर बच्चे भी थे, कुछ इमैच्योर बच्चे भी थे। अप्रोक्सीमेट जो उनकी तादाद थी वो 9th, 10th और 1st ईयर, 2nd ईयर वाले बच्चों की ज्यादा थी। और उनका बार बार क्लेम जो है वो हरासमेंट का आ रहा है, जिसको इंतजामिया बार बार छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उनको हरासमेंट का प्रॉब्लम ये दाढ़ी से, ये नमाज से और दीगर जो वहाँ की जो लाज है उनसे कहीं ज्यादा गंभीर है। और इसकी तरफ अभी तक क्योंकि किसी ने वो नजरसानी नहीं की, और जो जहां तक अगर जिक्र कर लिया जाए प्रिंसिपल मोहम्मद अकरम साहब का, तो वो क्योंकि राजपूत फैमिली से उनके माइंड में आता है कि जो मैंने फरमान जारी कर दिया है शायद वो हरफ आखिर है। और इस दौरान जो अगर पर्चे हुए हैं और जिनमें जो कश्वर गुजार हैं या नामजद उनको खिजर खलील भट्टी है या सनाउल्ला और अब्दुल वाहिद वगैरह, ये वो अफराद हैं जो कि वैसे भी यहाँ की अमन पसंद कमेटी के मेंबर हैं, जो यहाँ के
बहुत गहरी निगाह होती है समाज के ऊपर, क्योंकि ये समाजी कारकुन है, तो इनके ऊपर जो पर्चा देना और फिर वो भी प्रिंसिपल की मुद्दत में, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर कर रहे हैं। और जो यहाँ की अवाम है और जो बाशऊर इंसान है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। तो ये तो एक जातियात नजर आ रही है कि आपने किसी के ऊपर FIR नामजद दर्ज कर दी है और उसके पीछे बिहाइंड वजह ये है कि उन्होंने बच्चों को यानी कि एकोमोडेट किया है और सब बच्चों के साथ उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह इजहार यकजहती करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हाई लेवल पे उठाए जाएंगे। अगर ये हक की बात करना उनको मकसद है नागवार गुजरे हैं प्रिंसिपल साहब को, तो ये फिर उसके बाद जो बीच में इल्जाम तो ये FIR जो है जो दर्ज करवाई गई है उसमें ऐसे भूंडे इल्जाम लगाए गए हैं जो कि मकसद है बयान ही नहीं बनता किसी प्रिंसिपल का कि वो कहे कि जी ऐसी है या ऐसे है कुछ। तो ये सारी चीजें जो है सर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी और दूसरे न्यूज चैनल्स के ऊपर भी जीनत बनी हुई है आजकल। लेकिन बुज़दार साहब को चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स ने चाहे खा वो यूनिवर्सिटी के हों, खा वो कॉलेज के हों, खा वो स्कूल के हों, अगर उन्हें इंसाफ रोड पे ही आके मिलना है तो उनके हाथों में कोई हथियार दे दे, फिर उनसे कलम ले ले। बुज़दार साहब ये फरमाइएगा कि इस टाइम मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है? इंतजामिया कोई इन्वॉल्व हुई? किसी ने वहाँ के जो वहाँ आपके जो सियासी समाजी लोग हैं उन्होंने कोई राब्ता किया इस सारे वाक़े के ऊपर कि ये अब जो वाक़या हुआ ये अब क्या रुख लेगा, किस तरफ जाएगा ये? क्योंकि इंतजामिया की तरफ से आपके ऊपर FIR दर्ज करवाने के बाद तो यकीनन ये सूरत हाल अब सामने नजर आ रही है कि इंतजामिया के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके बजाय बिल्कुल उसका डाइवर्शन ही चेंज कर दी। जो लोग बेगुनाह, जो लोग पढ़े लिखे लोग अगर कोई बात करने के लिए बीच में आया तो उसके ऊपर FIR दर्ज करके मामले को तो मेरे ख्याल में खराब कर दिया गया। क्या आप अब क्या देख रहे हैं आप इस पर आप क्या होता नजर आ रहा है? सर बात ये है कि ये खालिस्तान DC और इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी इकदाम ये उठाया गया कि प्रिंसिपल की मुद्दत में FIR दर्ज हुई और उसमें DC ने फिर 16 MPO का दफा भी लगा दिया। ये देखे ना तजाद है, ये 16 MPO का दफा जो है उसकी स्टेट मुद्दई होती है, वो रोड ब्लॉक का होता है जी, वो जलाओ घिराव का होता है, वो इसी बात का होता है। जबकि FIR में एक मुद्दई है और वो प्रिंसिपल है, उसकी मुद्दत में FIR हुई। ये यानी DC ने उसकी साइड और उसका तहफ़्फ़ुज़ इस तरह किया कि DC ने गैर कानूनी इक़दाम ये किया कि उसने 16 MPO भी लगवा दिया। देखिए जिस FIR की मुद्दई स्टेट होती है उस पर 16 MPO लगता है जी। जब किसी पर्चे का मुद्दई कोई अवाम में से या कोई बंदा हो तो उसमें 16 MPO नहीं होती, ये दफा नहीं लगता। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि DC का किरदार क्या है और DC किस तरह इसका तहफ़्फ़ुज़ करने को जा रहा है। और ऊपर से और सर अंदर की बात यह है कि पिछले 2-3 दिन से दानिश स्कूल के अंदर एक स्ट्राइक चल रही है और क्लासें बंद हैं, बच्चे दानिश स्कूल के अंदर रोड्स पर बैठे हैं पिछले 3 दिन से। और पिछले 2 दिनों से दानिश स्कूल के बाहर पुलिस की बसें खड़ी हैं और पुलिस अलर्ट खड़ी है। ये अंदर के हालात हैं, जबकि यहाँ के हुकाम या जो इंतजामिया है या DC है या DPO है ये सिर्फ हमें तंग कर रहे हैं और उन्होंने हमें गिरफ्तार भी किया और हमें मुख्तलिफ थानों में वो घुमाते रहे कि हालात खराब हो जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे। और दानिश स्कूल इस वक्त भी पुलिस दानिश स्कूल के इर्द गिर्द है और दानिश स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे मुसलसल 3 दिन से स्ट्राइक पर हैं, उसका नोटिस कोई नहीं लेता। प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई इंक्वायरी स्टैंड तक भी नहीं हुई अभी तक। और जबकि ये हमें मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुसलसल थ्रेट कर रहे हैं, ये इंतजामिया का किरदार है, यानी एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये बुज़दार साहब ये फरमाइएगा कि जो MNA जो MPA हजरात हैं बुज़दार साहब उनकी तरफ से कोई कदम उठाया गया कि मामले को किसी तरह से इसको कोई बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए? मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया था कि हमारे हुक्मरान तबकात जो हैं, हुक्मरान तबका जो है हमारा वो बहुत पसमानदा है, वो नजरियाती नहीं है, वो सियासी नहीं है, वो सिर्फ सरमाए और ताकत के हसूल के लिए सियासत करते हैं और इलेक्शन स्टैंड करते हैं। इसी दौरान सुने आप, ये जब रोड ब्लॉक थी, जब बच्चे धरना दिए हुए थे, उसी दौरान मेरे पास
सियासी लोगों के फोन आए, जिनको सियासी गैर सियासी लोग, अगर गैर सियासी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, सियासत लफ्ज को भी बदनाम कर दिया। अच्छा, उनके फोन आए कि आप जिस तरह एसी साहब कह रहे हैं आप उसी तरह करें, आप एसी साहब से मिलें, आप जो वो कहें उसी तरह करें। मैंने उनसे कहा भाई आप नुमाइंदे हो यहाँ के, आप यही मौके पे आओ, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बच्चे रोड पर बैठे हैं, बच्चे गला फाड़ फाड़ के अपने दास्तानें सुना रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, तो आप उनको ऑन करें, वो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, उनको ऑन करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप जो है ना इसी तरह जिस तरह कहें आप उसी तरह करें। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट, इंतजामिया और ये गैर सियासी लोग, जिनको मैं सियासी कहना पसंद नहीं करता, ये गैर सियासी लोग हैं, मैंने MPA, इनकी मिली भगत होती है, ये एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और आवाम के साथ पिछले कई सालों से जो जुल्म और जबर और बर्बरियत का निशाना आवाम हो रही है, वो आपको पता है। पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में भी क्या हो रहा है वो भी आपको पता है। और ये तो नाकाम रियासतें होती हैं जो हमेशा गलत फैसले करती हैं इसी तरह के। ये बहुत शुक्रिया कसर गुजार साहब, आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। जवाद ये बताइएगा कि अब ये मामले का क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है, क्या होगा अब इसके ऊपर? ये अगर ये जिस तरह से गुजार साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ बच्चे स्ट्राइक पर हैं स्कूल के अंदर और बाहर पुलिस जो है वो मौजूद है, ये तो हालात तो कुछ बेहतरी की तरफ नजर नहीं आ रहे और आजकल में फिर हालात शायद खराब हो सकते हैं। सर, इसका जो बेहतरीन हल है वो तो ये है कि एक साफ शफाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और इस पूरे मामले की जो है ना इंक्वायरी कराई जाए और उसमें जो जहाँ पे जितना कसूरवार है उसको उसके कसूर के मुताबिक उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब ये तो बात मानने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जब धरना हो रहा था इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ के कोई मुकामी MPA या कोई मुकामी MNA साहब वहाँ पे तशरीफ उस टाइम नहीं लाए। और ये जो अब जैसे बुजार साहब भी कह रहे थे कि जैसे इस्लामाबाद में हो रहा है, या जैसे अभी पिछले दिनों आप यूनिवर्सिटी में भी देख रहे थे, फिर ये दानिश स्कूल का वाक़या हो जाना, फिर बुजार साहब के आने के ऊपर जमपुर के अंदर जो जिला की तहरीक है उसका मकसद है रोड को ब्लॉक कर देना। सर, ये मकसद रियासतें जो चलानी है तो उसके लिए ये है कि अवाम को सबसे पहले आपको इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। अगर आप इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए अवाम सीधी सी बात है सर की रोडों पे ही आएगी। अब जहाँ तक ये सारा मामला है, जब तक इसकी कोई शफाफ इंक्वायरी नहीं की जाती तब तक ये मामला तो लटका रहेगा। बाकी जितने संगीन किस्म के इल्जामात FIR में दर्ज किए गए हैं या जो बनाए गए हैं केसेस, वो तो सिर्फ बुक्स ही कह सकते हैं उसे और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो सारे अपराध जिनको नामजद किया गया है FIR में, ये यहाँ के समाजी वर्कर हैं, एक वकील इनका हल्का है, लोग इन्हें अच्छे से जानते हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि फेयर इंसान है और इखलाकी सिफात रखने वाले लोग हैं और लोगों को बल्कि हुजूम को मुंतशिर करने वाले और हुजूम को समझाने बुझाने वाले लोग हैं। अगर इन लोगों के साथ इस किस्म की जाति होगी तो फिर क्वेश्चन मार्क तो उठेंगे ना सर जी। सर एक बात ये है कि जी फरमाइए। डिस्ट्रिक्ट बार जो है ना, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार, उनकी भी आज हड़ताल है इस प्रिंसिपल के खिलाफ। जी। और दूसरी बात यह है सर, प्रिंसिपल को अगर चेंज कर दिया जाए तो जब जो दूसरा उसकी जगह में आएगा वो भी तो प्रिंसिपल होगा ना जी, तो चेंज करने में हर्ज क्या है? बच्चे इस नौबत तक आ गए, बच्चे इस हद तक आ गए, तो अब उसको इंक्वायरी या उसको जो ना प्रोटेक्ट करना या उसके वजाहतें पेश करना या उसको बचाने के लिए औरों के साथ कोई खतरनाक कार्रवाइयां करना या पुलिस की मुदाखलत, ये समझ से बालातर है। प्रिंसिपल और लगा दे, वो भी तो प्रिंसिपल होगा, वो भी तो उसी रैंक का होगा, इसमें हर्ज क्या है? क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? वो बहुत करप्ट आदमी भी है, अंदर की बातें बहुत ज्यादा हैं। आप जो एक्स वहाँ के मुलाज़मीन हैं उनसे भी पूछें, लोगों और बच्चों से भी पूछें, अंदर बहुत सारे अजाब हैं, बहुत सारे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, गैर अखलाकी बहुत सारे अजाब हैं अंदर, जो बातें आप खुल के बाहर आ रही हैं सर। तो प्रिंसिपल को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सरासर ज्यादती है, ये बच्चों के साथ भी ज्यादती है, ये हमारे मुस्तकबिल के साथ भी ज्यादती है, हमारे पूरे इलाके के साथ ज्यादती है। प्रिंसिपल को चेंज ना करना।
ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी और ये तहरीक रुकेगी नहीं। अब लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। प्रिंसिपल को अचानक में हर्ज क्या है, इनको क्या होता है? यानी कि या ये सारी इंतजामिया खुद शामिल है उसकी सब हरकतों में, उसकी सारी जो हरकत और सकनात है, करप्शन है, या जो भी उसकी गैर अखलाकी मामलात बाहर आ रहे हैं अब उसमें, या ये इंतजामिया खुद मुलविस है, अरबाब इक़्तिदार खुद मुलविस है, या उनको कोई फायदा पहुंचता है उससे। मेरे ख्याल में यही हो सकता है कि हर कोई यानी जो ताकतवर लोग हैं वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज होने में क्या हर्ज है? दूसरा भी तो प्रिंसिपल होगा, उसका भी तो यही रैंक होगा। मेरे ख्याल में इसको चेंज होना चाहिए फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। नाज़रीन, यहीं पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।